Hello students, myself Dr. UKR, the PhD Bar at JNV Samastipur, Bihar. And in continuation with the class 10 NCERT chapter 8, how do organisms reproduce? Today I would like to discuss secondary sexual characters in human being. As we know that after birth there is general development both in case of boys and girls, and after the attainment of puberty at the age of adolescence there is gradual appearance of secondary sexual characters by dint of which we can say that whether he or she prior to that means prior to getting the sexual maturity, both the boys and girls they are appearing similar. दूर से देखने पर या बच्चों को देखने से आप ये नहीं कह सकते कि whether he or she external appearance already at the time of birth, rather at the time of fertilization it is being decided whether the coming child is he or she, just at the time of fertilization. But the secondary sexual characters differentiates male from female externally by visualizing externally. So this is the secondary sexual character and it appears at the age of adolescence, at the age of puberty, and that is 13 to 14 years in case of boys and 10 to 12 years in case of girls. They will get sexual maturity. So these are the phenomena which is being regulated by the sex hormone, and they are being secreted by testes and ovaries under the influence of follicle stimulating hormone FSH from pituitary gland. So let us see what are the changes that take place during adolescence, during puberty in case of male and female, and some of the characters they are common to both the sexes. The secondary sexual characters are being controlled, are being developed under the influence of sex hormones from testes and ovaries. Under the influence of FSH, follicle stimulating hormone from pituitary gland, the testis produces testosterone and ovaries produces estrogen and progesterone, and they are meant for, their functions are controlling the production of gametes. That means under the influence of FSH, the testis started producing testosterone after getting puberty, and this testosterone is meant for the development of secondary sexual characters in male. It is meant for production of sperms. It helps in spermatogenesis. And in case of female, the ovaries produces estrogen and progesterone for the development of their secondary sexual character. It helps in production. It helps in maturation of egg. So controlling the production of gametes. That means these hormones are controlling the production of gametes. In case of male, production of sperm. That means spermatogenesis, and in case of female, maturation of egg. Maturation of ovum, that means oogenesis, maintaining the structure and function of accessory sex organs. Accessory sex organs means other than testes. In case of male, the vas deferens, the ejaculatory duct, the urethra, these are the accessory structures associated with sexual reproduction or associated with sex organs or reproductive system. Testis and ovaries, they are the primary sex organ. In case of male, testis is the primary sex organ, and in case of female, ovaries are the primary sex organ. And the associated structures, the related structures, in case of female, the fallopian tube or oviduct, the uterus, cervix, vagina, these are the structures which is associated with reproduction. They are accessory sex organs. And next one, the development and maintenance of secondary sexual characters. So these are the functions of the hormones which is being secreted by testes and ovaries. So let us see what are the differences that arises
after getting puberty in case of female as well as in case of male. And some of the characters, some of the development, some of the secondary sexual characters are common in both the cases. That means in case of boys and girls. These are the common secondary sexual characters which appear in case of boys and girls, like growth of hairs in armpit and genital area. जो हेयर्स है उसकी ग्रोथ हो जाती है कहाँ, आर्मपिट में और जेनाइटल एरिया में, इन केस ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. थिनर हेयर ग्रोज ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस. बॉडी के दूसरे पार्ट पे भी, हाथ पे है ना, वहाँ पे या पैरों पे या चेहरे पे भी जो बाल हैं छोटे छोटे वो अपीयर हो जाते हैं. उसके बाद क्या हो गया, स्किन बिकम्स ऑयली. ये सबसे बड़ा है और बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं. एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, कई बार जो ऑयल की फॉर्मेशन होती है, फैट की फॉर्मेशन होती है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस अधिक होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फैट है उसकी डिपोजिशन होगी और कई बार ये बाहर नहीं निकल पाते हैं. जो इसके पोर्स हैं ग्लैंड के, है ना, सीवेसियस ग्लैंड, सुडोरिफिक ग्लैंड, तो इस ग्लैंड के जो पोर्स हैं, ओपनिंग है, वो क्लॉग्ड हो जाती है, बंद हो जाते हैं और उसके कारण फैट की डिपोजिशन हो जाती है. दैट बिकम्स पिंपल्स. तो जैसे ही बच्चों में पिंपल्स आते हैं वो कंसर्न रहते हैं अपने प्रति, अपने चेहरे के प्रति. कई बार जाएंगे मिरर के सामने, बाल बाल बनाएंगे, चेहरा देखेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. और जैसे ही पिंपल्स अपीयर होते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया. कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खूब पानी पीजिए, चेहरे की सफाई कीजिए, ये आ रहा है, दैट मीन्स यू आर ग्रोन अप, आप जवान हो गए हैं. ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब हम लोग को कहाँ आ रहे हैं, नहीं ड्राइनेस आ गया है, लेकिन आप लोगों को आएंगे ही, बिकॉज यू आर एब्सेंट. तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन ए न्यू वे. अब क्या होते हैं, पहले बच्चे जैसे तैसे रहते हैं, किसी तरह से कपड़ा पहन लिए, बाल बाल ठीक किए, नहीं किए, नो प्रॉब्लम. लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, कपड़े थोड़े ढंग से पहनना चाहते हैं, कहीं पार्टी जाना चाहते हैं, तो उन्हें लगे कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें केयर करे, कोई वॉच करे, और खुद दूसरों के प्रति भी अट्रैक्ट होते हैं. उनका नजरिया बदल जाता है, बॉडी को देखने का उनका नजरिया बदल जाता है. बच्चों में कहीं कोई फीलिंग नहीं होती है, सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये हार्मोन काम करना स्टार्ट कर देंगे, ये कॉमन प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी. फीलिंग्स एंड सेक्सुअल ड्राइव एसोसिएटेड विद एडल्टहुड बिगिंस. जो फीलिंग्स है, उनकी सोच है, उनके बात करने का तरीका है, जो कहानियां पढ़ते हैं, जो फिल्में देखते हैं, वो सारी चीजें क्या होगी, टुवर्ड्स सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, पीक पे होता है, क्योंकि इनिशिएशन होता है, नई चीजें होती है, नई बातें होती है. तो दे आर वेरी मच क्यूरियस रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स. कई बार बच्चे छुप करके कई चीजें बात करते हैं, कई बार देखना चाहते हैं, और आज के डेट में तो इंटरनेट ने सारा कुछ ओपन कर दिया है, पोर्नोग्राफी इज देयर, और ये काफ़ी गंदी चीज़ें हैं, और इसकी जो लतें हैं बच्चों में वो बहुत ही बुरी आदत है. तो आप लोग प्रयास करें कि इन सारी चीज़ों से दूर रहें. हर एक चीज़ के लिए एक समय है ना, समय आएगा सब कुछ होगा. हमें कहा गया है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले केतक सींचोनिए. तो जब समय आएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, आपकी शादी ब्याह होगी, एवरीथिंग विल बी फिट, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड एट इट्स एप्रोप्रिएट टाइम. जो उचित समय है उस पर सब कुछ अच्छा लगता है. जो समय से पहले है, जैसे देखेंगे छोटा पेड़ पौधा लगाया जाता है और उसमें जो पौधे छोटे होते हैं उसमें मंजर आता है, फूल आता है, तो किसान या बागवान जो है उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी इसका ये स्टेज नहीं है कि इस छोटे से पौधे में फल लग जाए, फूल लग जाए, यानी कि उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा. Okay, the same condition, the same thing happens in case of human being. Therefore, avoid the wrong habits. Avoid to see the sights which are meant for adulthood, and that is already wastage of time, wastage energy. और वो कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित करते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं, और क्राइम का एक बहुत बड़ा कारण है ये साइट्स. तो avoid all these sites. It is my request, it is my humble request to all of you, my dear students, my dear children, avoid all those bad habits, bad things. In case of girls, all these changes are taking place during sexual maturity.
फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। जो अपीयरेंस है क्या होंगे, ब्रेस्ट की अपीयरेंस होगी, इनलार्जमेंट होगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड डार्केनिंग ऑफ निपल स्किन। जो निपल्स है दैट मींस द एंटीरियर पार्ट, द आउटर मोस्ट पार्ट, वहाँ क्या होंगे, ब्लैकेनिंग होगी, डार्केनिंग होगी। निपल्स फ्रॉम वेयर मिल्क इज बीइंग इजेक्टेड, बच्चे जहाँ से दूध पीते हैं, सक करते हैं, तो वहाँ क्या होंगे, ग्लैंड होते हैं और उसकी ओपनिंग होती है, यहाँ पे ग्लैंड, तो वहाँ क्या होगी, डार्केनिंग होगी, सर्किल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रॉडेनिंग ऑफ पेल्विस और हिप ब्रॉडेंस, जो हिप है वो क्या हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है तो ओवरऑल जो चाइल्ड है, जो एम्ब्रियो है जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, फाइनली अराउंड 8 to 10 kg वेट गेन होता है। और 8 to 10 kg वेट गेन कहाँ होगा, इन एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी, इन यूटेरस, इस साइड में। तो फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि यदि आप पानी भर के बाल्टी में चलते हैं, इस हाथ में यदि बकेट में पानी है तो आप क्या करते हैं, इधर की ओर झुक जाते हैं टू मेंटेन द बैलेंस। पानी इधर है तो झुकते हैं इधर की ओर, तो क्या होगा, इधर की ओर वेट इंक्रीज कर रहा है, तो बैलेंस के लिए क्या होगा, पीछे का भाग ऑटोमेटिकली ब्रॉडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं और वो मांसल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन टॉप, क्या होंगे, एक्स्ट्रा फैट डिपोजिटेड इन थाई, शोल्डर्स, फेस एंड बुटॉक, इन सारी जगहों पे एक्स्ट्रा फैट की डिपोजिशन हो जाती है, जिससे क्या होता है, एक जो ब्यूटी है, जो लुक है, जो शाइनिंग है, वो इंक्रीज कर जाती है। जैसे जैसे डीग्रोथ होती है, एजिंग होती है, तो ये सारे के सारे चमक धीरे धीरे क्या हो जाता है, छीन लिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक 80 साल की 85 साल की बुढ़िया को देखेंगे, उसके फेस को देखिए, और एक 17 साल 18 साल की लड़की है, उसके फेस को देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि जो फैट की डिपोजिशन थी वो कहाँ चली गई और किस तरह से नेचर ने एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। और फिर जब उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई तो ग्रेजुअली वो सारी चीज़ें सीज हो जाती है, छीन लिए जाते हैं। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि एक अब क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहे हैं। इनिशिएशन ऑफ एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मींस ओवरीज आर स्टार्टिंग, ovary has started the release of egg. In fact, there is maturation of egg. लेकिन आप लोगों के लिए चलेगा formation of egg, production of egg। होता क्या है कि at the time of embryonic development of the girl, जिस समय गर्ल चाइल्ड की embryonic development खुद की हो रही होती है, उसी समय उसके ovaries में egg की production हो जाती है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ग्रेजुअली इनमें से एक एक करके 28 दिनों के अंतराल पे एक एक करके एक मैच्योर होती है और रिलीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। दैट मींस दैट इज द मैच्योरेशन ऑफ एग्स, दैट इज नॉट प्रोडक्शन ऑफ एग। प्रोडक्शन हैज ऑलरेडी बीन डन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ऑफ दैट गर्ल चाइल्ड, है ना। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और एग का फॉर्मेशन, एग की मैच्योरेशन, दैट मींस रिलीज ऑफ एग, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ा सिम्टम है ऑफ गेटिंग प्यूबर्टी। और लाइफ में जो फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस होंगे, इसको हम लोग जो लाइफ में फर्स्ट एमसी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्की। दिस इज द फर्स्ट एमसी, फर्स्ट एमसी ऑफ लाइफ। और फिर क्या होंगे, आफ्टर गेटिंग द एज ऑफ 45 to 50, अब क्या है, जो बच्चे पैदा करने का समय है अब खत्म हो गया, क्योंकि आफ्टर 40, आफ्टर 45, आफ्टर 50 डिग्रोथ हो जाती है, बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो अब चाइल्ड बियर करना बहुत ही टीडियस जॉब होगा, तो नेचर ने ऐसा कर दिया है कि ऑटोमेटिकली उस कैपेसिटी को सीज कर लिया जाता है, यानी कि दैट इज द सीजेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो क्या होंगे, जो एग का मैच्योरेशन था वो स्टॉप हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अब बंद हो जाएगी, और उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज, है ना। ये क्या होंगे, दिस इज द लास्ट एमसी। ये लाइफ का क्या होगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, यानी कि अब इसके बाद बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो क्या होंगे, इन केस ऑफ फीमेल
हम लोग ये कर सकते हैं, द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, द रिप्रोडक्टिव एज लाइज बिटवीन मेनार्की टू मेनोपॉज। मेनार्की से मेनोपॉज के बीच में जो एज है, दैट इज द फर्टाइल एज इन केस ऑफ फीमेल। बट इन केस ऑफ मेल, मेल में क्या होता है, द स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूज होल लाइफ, यानी कि लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ तक स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। हालांकि बहुत अधिक ओल्डर स्टेज में ये बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन स्पर्म की प्रोडक्शन होती रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग puberty, during sexual maturity. In case of boys, during appearance of secondary sexual character, during adolescence, during puberty, these are the changes that is taking place. Enlargement of penis and scrotum, that means the copulatory organ and the testis remains in scrotum. So there is development, there is enlargement of both the organs. Enlargement of larynx, larynx means voice box. एंड डीपेनिंग ऑफ वॉइस, डीप हो जाते हैं, वॉइस क्रैक करने लगते हैं, आवाज फट जाती है, पता चलता है कि ये मर्द की आवाज है। हमारा बच्चा जब बाहर रहता था तो कई बार फोन से बातचीत होती थी, तो हम लोगों की बातचीत थोड़ी फ्रीक्वेंट होती रहती है, लेकिन हमारे पिताजी की बातचीत थोड़ा लंबे अंतराल पे होता है। या हम लोग ऐसे भी अपने फादर को तब फोन करते हैं, याद करते हैं जब पैसा लेना होता है। पहले चिट्ठी लिखते थे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, है ना, चरण स्पर्श, कहना ये है कि 500 रुपये की जरूरत है, साइकिल खरीदनी है, किताब खरीदनी है। तो आज भी लगभग वही हाल है। तो जब हमारे बच्चों से उनकी बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि इसकी आवाज़ को क्या हो गया है, बच्चे की आवाज़ को क्या हो गया है। तो हमें ध्यान आया कि अच्छा इसका जो प्यूबर्टी है, एडोलेसेंस है, आवाज़ की क्रैकिंग हो गई है और इसलिए इन्हें अंतर पता चल रहा है। तो हमने कहा कुछ नहीं हुआ है, ये एज ग्रो कर रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है। दिस इज द सिम्टम। आवाज़ की क्या हो जाती है, क्रैकिंग हो जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है। फीमेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अधिक है, और मेल की फ्रीक्वेंसी साउंड की कम है ना। तो क्या होता है, आवाज़ भारी हो जाता है। इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। मैन जो है, जो मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, तो मैन मीन्स वर्कफुल। तो वर्कफुल होने का मतलब है, जो फिजिकल वर्क करने का मतलब है, उसके लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बोन्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स होने चाहिए। तो इसीलिए मसल्स और बोन की डेवलपमेंट होती है। और आजकल बच्चे बनाते भी हैं सिक्स पैक, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, कि लगे कि हाँ मेलनेस है। अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, मूछ दाढ़ी का आना, है ना। मूछ दाढ़ी ही सबसे पहले वो बाहर से दिखाई देता है कि अच्छा बच्चा बड़ा हो गया है, अब ये मैनेजेबल हो गया, शादी के लायक हो गया है। चेस्ट एंड शोल्डर्स ब्रॉडेन, जो सीना है वो क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। Soldiers, testis starts production of sperm, that means spermatogenesis starts, sperm की formation start हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो मेल के केस में मेलनेस को लाता है, और इससे पता चलता है कि now the child, the male child, the boy has grown young, that means now he has entered in the age of reproduction, it is the reproductive age। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष, लड़कियों का 18 वर्ष, ठीक है। उसके पहले आपकी शादी मान्य नहीं होगी, क्या होगा, आपके ऊपर जुवेनाइल कोर्ट में केस होंगे, आपको जेल भेज दिए जाएंगे। तो कभी भी 21 साल के पहले बॉयज और 18 साल के पहले लड़कियां दिमाग में भी नहीं लाना कि अभी भागना है, अभी शादी करना है, अभी लव है, अभी अफेयर है। अभी केवल और केवल तुम्हें पढ़ाई करनी है, अपने कैरियर को बनाना है, और जब कैरियर बन जाएंगे तो लड़के तुम्हारे पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी, और लड़कियां तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लगेगी। बस जरूरत है तुम्हें एक सक्सेसफुल इंसान बनने की। सो डू योर वर्क ऑनेस्टली, लेबर हार्ड for the achievement of your goal. All the best. Thank you once and again for viewing, for watching, for subscribing my video, and hope that you will enjoy, you will get benefit from our video. And in next class we will deal with the reproductive organs, means male and female reproductive systems. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।